Hi guys, welcome to the daily analysis of Financial Express newspaper of 9th December 2021. So let's start first article which is on page number 3rd, that is RBI holds rates, says recovery needs support. As you all know, economies experience fluctuations in economic activity. Mostly students of economics know in a better manner that fluctuations in the economy as a whole come from changes in aggregate supply or aggregate demand. These changes are called shocks to the economy, right? A shock that shifts the aggregate demand, that is called demand shock, and a shock that shifts aggregate supply, that is called supply shock. Okay, these shocks disrupt the economy by pushing output and employment away from their natural levels. So, firstly, we will see how these shocks cause economic fluctuations, and then we will evaluate how macroeconomic policy can respond to these shocks. Okay, and economists use the term stabilization policy to refer to policy actions aimed at reducing the severity of these economic fluctuations. Okay, monetary policy and fiscal policy are important components of this stabilization policy, but in this lecture we will talk about only monetary policy, right? Firstly, monetary policy refers to measures to control money supply. Okay, because money supply has a powerful impact on aggregate demand. Okay, so we examine how monetary policy might respond to these shocks. Okay, you all know RBI Governor Shaktikant Das announced the monetary policy report, and in this report the repo rate and reverse repo rate were kept unchanged as per according to this article. Also, RBI holds rates, says recovery needs support. जो भी रेट्स है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशो, सभी को कांस्टेंट रखा है, जैसे जितने थे उतने ही है. क्यों उतने ही रखे हैं? बिकॉज जो इकोनॉमी है उसको ज़रूरत है रिकवर होने की, तो उसको सपोर्ट करने के लिए ही उनको कांस्टेंट रखा है. ठीक है. अकॉर्डिंग टू Shaktikant Das observed that private investment needed to boost aggregate demand, which was still lagging while the Omicron variant of the COVID-19 virus had brought in more uncertainty. देखो, ओमिक्रॉन की वजह से कुछ अनसर्टेनिटी हो गई थी इकोनॉमी में, है ना. उसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड बैडली अफेक्ट हुई. तो एग्रीगेट डिमांड को बूस्ट करने के लिए हमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना पड़ेगा. ठीक है. तो फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट दोज मेजर्स दैट आर यूज्ड टू बूस्ट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट. ओके, अब देखो, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एग्रीगेट डिमांड का एक कंपोनेंट है ना. तो we have talked about all components of aggregate demand in my previous lectures, right? There are consumption, investment, government expenditure and net exports. All these are the components of aggregate demand. Okay? But इस आर्टिकल में सिर्फ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने की बात की है. ठीक है. तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा कैसे बढ़ाया जा सकता है? कैसे बढ़ाया जा सकता है? सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम करके. अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कब कम होगा? जब मनी सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, है ना.
देर इज इनडायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन मनी सप्लाई एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, तो इसीलिए जो रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, उनको कम रखा गया है ताकि रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम रहे। और एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने की वजह से लोग अपना पैसा बैंक में सेव नहीं करेंगे, बल्कि वो अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि उनको बैंक में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिल रहा है। ठीक है, एक तो उस वजह से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। ठीक, दूसरी चीज़ ये होगी कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो बैंक्स जो है आरबीआई से लोन लेंगे, क्योंकि उनको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा आरबीआई को, और उसकी वजह से बैंक्स भी अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करेंगे। उसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स है वो लोन ज़्यादा लेंगे और उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, तो उसकी वजह से भी रेट ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये रहा मेजर टू इंक्रीज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, राइट। रेट ऑफ इंटरेस्ट का कम होना प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करने के लिए ज़रूरी है। ठीक, अब देखो, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से एग्रीगेट डिमांड कैसे बढ़ता है। जब लोगों के पास पैसा ज़्यादा आएगा, इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम करने से मनी सप्लाई बढ़ेगा, है ना। जब मनी सप्लाई ज़्यादा होगा तो लोग गुड्स के लिए डिमांड करेंगे, है ना, तो उस वजह से एग्रीगेट डिमांड भी बूस्ट होगा। ठीक है, अब अगर एग्रीगेट डिमांड उसके नेचुरल लेवल से अगर ज़्यादा हो जाता है तो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी होते हैं इकोनॉमी पर। ठीक है, अब अगर एग्रीगेट डिमांड इतना ज़्यादा बढ़ जाए कि जितना उस गुड्स का प्रोडक्शन है इकोनॉमी में वो कम पड़े, तो वो नेगेटिवली अफेक्ट करेगा इकोनॉमी को। एक साइड से एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ने से एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ने से लोगों का इनकम बढ़ेगा, राइट। ये तो पॉजिटिव इफेक्ट है। दूसरा क्या होगा कि प्रोडक्शन के बढ़ने से एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, लोगों का इनकम बढ़ेगा, फिर लोग डिमांड करेंगे गुड्स की। जब गुड्स की डिमांड बढ़ते हैं तो उसके साथ साथ प्राइसेस ऑफ गुड्स भी इंक्रीज होते हैं। ठीक है, उसकी वजह से इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगा, राइट। और देखो, इन्फ्लेशन रेट का एक लिमिट तक बढ़ना इकोनॉमी के लिए अच्छा होता है, इंसेंटिव होता है इन्वेस्टर्स के लिए, प्रोड्यूसर्स के लिए। बट अगर उस लिमिट से ज़्यादा इन्फ्लेशन रेट बढ़ा तो वो आरबीआई के लिए हेडेक बन जाती है। ओके, अब देखो, उस हेडेक को कम करने के लिए आरबीआई क्या करती है। एक और टर्म है, वो है पेज नंबर 11 पे, जस्ट वेट, पेज नंबर 11 पे एक टर्म है, दिस इज VRR। दिस इज वेरिएबल रिवर्स रेपो रेट। देखो, जब इन्फ्लेशन रेट, जब आरबीआई को लगता है कि मार्केट में मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और उसकी वजह से मनी सप्लाई के बहुत ज़्यादा बढ़ने से इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो आरबीआई क्या करती है। देखो, जब बैंक्स, इसका मतलब बैंक्स के पास सरप्लस मनी हो चुका है, ठीक है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, रेपो रेट कम है, तो बैंक्स आरबीआई से लोन लेते रहेंगे, ठीक है, और फिर वो आगे भी लोन देते रहेंगे। उसकी वजह से लोगों के पास मनी सप्लाई, पैसा बहुत ज़्यादा हो गया है ना। तो उसकी वजह से
बैंक्स के पास जो ये एक्स्ट्रा मनी हो गया है, इसको वो कहाँ डाले कि मनी सप्लाई को कम करना है, क्योंकि उसकी वजह से इन्फ्लेशन रेट लिमिट से ज़्यादा बढ़ रहा है। उस केस में आरबीआई क्या कहता है बैंक्स को कि जो आपके पास ये सरप्लस मनी है, आप इसको मेरे पास डिपॉजिट करो। ठीक है, जब आरबीआई के पास बैंक्स अपना डिपॉजिट करेंगे तो आरबीआई उन बैंकों को रिवर्स रेपो रेट पर इंटरेस्ट रेट पे करेगा। ठीक है, अब ऐसे तो कोई भी बैंक आरबीआई के पास डिपॉजिट नहीं करेंगे, क्योंकि उनको इन्वेस्टर्स उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा चाहिए, तभी वो आरबीआई के पास डिपॉजिट करेंगे अपना कैश, राइट। तो आरबीआई ये कहता है कि मैं आपको जो रिवर्स रेपो रेट है उससे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट दूंगा, इसलिए आप मेरे पास इस एक्स्ट्रा मनी को डिपॉजिट करो। ठीक है, तो बैंक सोचते हैं कि ठीक है, हम अपना पैसा आरबीआई के पास डिपॉजिट करेंगे, क्योंकि हमें रिवर्स रेपो रेट से ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो सारे बैंक्स रेडी हो जाते हैं कि हमने आरबीआई के पास अपना पैसा डिपॉजिट करना है। बट आरबीआई सब बैंकों से डिपॉजिट नहीं लेगा। ठीक है, वो सिर्फ उन बैंकों से ही डिपॉजिट लेगा जो मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट मांगेगा। ठीक है, जो ये रिवर्स रेपो रेट से थोड़ा सा ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, बट रेपो रेट से कम वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। ठीक है, ठीक है, तो अगर बैंक्स आरबीआई सिर्फ उन्हीं बैंकों के डिपॉजिट रखेगा जो रिवर्स रेपो रेट से थोड़ा सा ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मांगेंगे, जो बहुत ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मांगेंगे रिवर्स रेपो रेट से, तो वो उनकी डिपॉजिट अपने पास नहीं रखेगा। ठीक है, तो फिर आरबीआई बैंक्स को रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा रिवर्स रेपो रेट से ज़्यादा। ठीक है, जो ये ऑक्शन होगी ना कि आरबीआई सिर्फ उन्हीं बैंक का डिपॉजिट रखेगा सिर्फ जो मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट मांगेगा, तो जो ये ऑक्शन है, ये ऑक्शन ही वेरिएबल रिवर्स रेपो रेट है। ओके, सो दिस इज अबाउट दिस आर्टिकल। ओके, एक चीज़ और है, जैसे जो रिवर्स रेपो रेट की बात है, वो ऐसी भी होती है जब अगर बैंक्स के पास जो सरप्लस मनी है बहुत ज़्यादा, तो उसको रिवर्स रेपो रेट, तो वो होता है ना जब अगर आरबीआई बैंक से लोन लेता है तो उसके बदले में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक्स को देता है वो होता है रिवर्स रेपो रेट। ओके, एक तो ये इन्फ्लेशन रेट को कम करने के लिए आरबीआई ऐसा करता है। ठीक है, तो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।